सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरे को नया शौक चढ़ा है यूट्यूब वीडियोस बनाने का। आई डोंट नो क्यों, मेरे को बस हो गया है। तो अभी मैं ये बना रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ एंड तुम देखोगे। थैंक यू। सो एनीवेज, अपना एजेंडा फॉर टुडे विल बी बार्बेनहाइमर। यस, सो 21 जुलाई 2023 इस दिन पे दो मूवीज आने वाला थे। वन वॉज बार्बी एंड वन वॉज ओपेनहाइमर। वन वॉज प्योर ब्लिस एंड वन वॉज प्योर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने 3 घंटा जो ओपेनहाइमर देखी है, आई हैव गॉन थ्रू एवरी सिंगल इमोशन दैट एग्जिस्ट। मेरे को पेन, एगनी, ग्रीफ, रिलीफ, भाई एक्साइटमेंट सब हुआ। एंड मैंने जब बार्बी देखी, कसम से बता रहा हूँ, मेरे को अपना लैपटॉप स्क्रीन फोड़ना था। उस पे भी आता हूँ। ओपेनहाइमर आई वॉच्ड इट इन द वे दैट इट वाज मेंट टू बी वॉच्ड, यू नो, आईमैक्स थिएटर दोस्तों के साथ वगैरह। आई वॉच्ड बार्बी ऑन माई लैपटॉप। मैं नहीं दे रहा पैसे ये देखने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने इस मूवी पे पैसे बर्बाद नहीं किए। सो आई विल गेट टू द पॉइंट्स राइट नाउ कि ये सब ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। So the first point of Oppenheimer, bhai, let's just start with the director, Christopher Nolan. भाई, you know he's the goat of the editors. He's the greatest of all time. मैंने goat का definition ही बोल रही है, वाह भाई। So of course, भाई Nolan, he has made very great movies. Interstellar, Tenet, Inception, Dark Knight का पूरा trilogy, Prestige, Memento. तो Oppenheimer is just another great that he has made, भाई. Like the hype that he has built up, it is justified. And the thing was that Nolan shot this entire movie on 70mm IMAX cameras, and India में वो कहीं screen नहीं होती है, तो you can't get the entire experience. But I'd say कि मैंने IMAX and normal theater दोनों में देखे, and difference ज़्यादा है नहीं, but the visuals and audio are just better in the IMAX. So I'd suggest कि अगर तुम्हें वो पैसे खर्च करके जाने हैं मूवी देखने, then definitely IMAX was a very good thing. But normal theater is also good. I'll get to the next point also. So the second thing that I want to talk about is the cast. Now, Oppenheimer featured an ensemble cast. So basically all the actors got equal amounts of screen time in the movie. So you had Cillian Murphy, you had Robert Downey Jr., you had Matt Damon, and you had Emily Blunt, all in the ensemble cast. And I would say everyone did their role perfectly. Like असम्पशंस आ रहे थे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर भाई क्या रोल करता है, मस्ती खोर बंदा है, बट ही कैरीड हिज रोल परफेक्टली इन द एंटायर मूवी। बंदे ने जो स्विच मारा है, ही वॉज द मेन एंटागनिस्ट ऑफ द मूवी एंड ही शोड अस व्हाई। रोल कैरी करने से याद आता है रामी मालिक। तो भाई बंदे ने 5 मिनट के स्क्रीन टाइम में जो प्लॉट ट्विस्ट दिया ना हमको, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द मूवी फॉर एनीवन हु हैव नॉट वॉच्ड इट येट, बट भाई उसका सबसे छोटा रोल होगा, नॉट सबसे छोटा रोल, बट उसका छोटा रोल था मूवी में, बट ही स्टिल डिड वेरी गुड इन दैट। एंड इट वाज जस्ट एन अमेजिंग कास्ट, जस्ट एन अमेजिंग डायरेक्टर। एंड आगे भी बहुत है, मैं बात करूंगा। So the third thing that I want to talk about, not many people know about this, but Universal Pictures actually had an announcement live stream. Yes, announcement live stream. So around a year ago, they had started a live stream for the Oppenheimer announcement, and this was basically a loop of the same video, but उसमें एक timer था, and वो timer countdown कर रहा था to the exact time that the Trinity test happened, which was 5:30 something. So in that time zone when 5:30 happened, that live stream ended. And I should say मेरे को ये पता नहीं था कि तब एंड होने वाला है। मैंने अभी थोड़ा रिसर्च करके पता किया ये, and the live stream is also gone now. But the fact that they had that much attention to detail for that particular live stream is just mind-boggling. I don't know ये नोलन का आइडिया था कि वो स्टूडियो का आइडिया था, but anyways it was just so good. And मेरे को ये बात पता चली ऑनलाइन ट्विटर पे क्योंकि इसकी बात चल रही थी, but it was amazing. You could see that they didn't need to advertise their movie a lot, unlike Barbie. क्योंकि भाई ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था Oppenheimer when this announcement came out, and it was a very good talking point क्योंकि भाई this attention to detail nobody gives in the industry now, and it's just amazing to see this.
Fourth thing that I want to talk about in this movie is that the fact that no CGI shots were used. Now इस पर भी एक clarification देना है. No CGI shots mean that none of the shots in the movie are completely CGI'd. एक भी शॉट ऐसा फेक नहीं है, सारे शॉट्स रियल है, बट देयर इज CGI यूज्ड. नाउ आई डोंट नो किधर CGI यूज हुआ है किधर नहीं, बट मैनी पीपल आर सेइंग कि that claim that there is no CGI is wrong, but there are no CGI shots, so that is a very good thing. And you can see it in the movie. भाई the practical effects दिखते तुम्हें अलग से, and you can feel the realism in every shot that they show on screen. तो भाई उसका एक point I'd say is a very good thing. You know that Nolan is a guy who gives very much thought into all of this, and I've read that they've used magnesium flares and TNTs to create explosions and all the other visuals. So it's very amazing that Nolan tries to minimize digitalization in his movies, tries more towards the traditional way, and that is what sets the movie apart from every other. So that was a very good thing. On to the next point. So आई डोंट नो भाई नोलन कैसे सोचता है कि इन लोगों को लेना है, बट द वर्क दैट हांस जिमर डिड ऑन इंटरस्टेलर, इट्स स्टिल माय फेवरेट टू दिस डे. भाई इंटरस्टेलर का साउंड ट्रैक इज माय फेवरेट, बट अभी ओपेनहाइमर का सुन के आई थिंक आई हैव अ न्यू फेवरेट. लुडविग गोरांसन वाज द स्कोर प्रोड्यूसर फॉर द मूवी, एंड भाई आई थिंक देयर आर 24 or 25 ट्रैक लिस्ट्स इन द एंटायर स्कोर, एंड एवरी वन ऑफ देम हिट. लाइक भाई सब पे the music sets the scene, I'd say. वो बोलते हैं ना कि 50% of the movie is dependent on the audio, and I'd say कि हाँ भाई, if I'm not wrong, they're saying that 80% of the movie has a background music in it. So if that is true, I get why you are so captivated in the movie भाई, क्योंकि 80% तुम्हारे गानों में कुछ आवाज़ चल रही है. एंड आवाज़ से याद आता है, there are moments in the movie where there is complete silence. I don't want to spoil it again. तो भाई there are some scenes in the movie which are completely quiet. Just I have seen in Interstellar also. भाई कुछ सीन ऐसे रहते हैं जहाँ पे तुम एक लाउड बैंग या कुछ सोचते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स completely pin drop silence रहता है. एंड भाई सच में it is just amazing what the audio has done in the movie. The only thing that I didn't like about the movie was that it was 3 hours long, but the fact that it was so भाई random. जो ऑडियो था, जो वीडियो था, जो विजुअल्स थे, जो टाइमलाइन था, इतना सब चल रहा था मूवी में, यू डोंट रियलाइज व्हेन 3 hours are done. बट या इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मूवी आइड से, तो मेरे को बस वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा. बाकी सब इट वॉज वेरी गुड. इट वॉज अ लाइक भाई मैं ये मूवी तीसरी बार देखने चला जाऊँगा, माँ कसम. अभी आई टॉक्ड अबाउट द मोस्ट अमेजिंग मूवी दैट आई हैव सीन टिल डेट. आई एम गोइंग टू कम ऑन टू द मूवी जो मैं सोच रहा था कि मैंने ये क्यों देखी. द ओनली थिंग दैट आई एम थैंकफुल अबाउट इज कि मैंने इस मूवी पे टिकट के पैसे खर्च नहीं करे. आई वॉच दिस मूवी एट माई होम ऑन अ पायरेटेड स्ट्रीम, and I'm so glad that I did that, because man this movie is awful. भाई इस मूवी को देख के मेरे को सिर्फ 3 चीज़ें लग रही थी. ये कितना क्रिंज है, ये कितना गंदा है, ये कितना क्रिंज है. 2 ही चीज़ें हैं, बट भाई मेरे को 3 बार रिपीट करनी है क्योंकि मूवी इतनी गंदी थी. जस्ट लाइक एन ओपेनहाइमर आई वेंट थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एक्साइटमेंट. फॉर बारबी आई वेंट थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. मेरे को डिनायल हो रहा था कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मेरे को एक्सेप्टेंस हो गई कि मैंने मूवी देख के ख़त्म कर दी, एंड देन मैं बार्गेन कर रहा था कि मैंने मूवी क्यों देखी. So the talking point about Barbie that I have is, भाई बहुत ही क्रिंजी मूवी है ऑनेस्टली. मेरे को लगा था एक किड्स मूवी होने वाली है, बट जैसे जैसे देख रहा था मैं समझ रहा था कि ये किड्स मूवी बिल्कुल नहीं है. इट इज़ PG-13, रेटिंग उसकी PG-13 है, बट आई थिंक कि ये मूवी ना कि PG-13 ना कि PG-18 ना कुछ होना चाहिए था. ये मूवी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए इस दुनिया में. The fact that this movie exists is one thing, but the fact that it is topping the charts more than Oppenheimer is just, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था वो सुन के. The fact that there is an audience big enough that they don't want to watch Oppenheimer but they want to watch Barbie. The only reason that I endured the 2 hours of pain was that because the movie featured Ryan Gosling,
एंड ऑनेस्टली भाई उसके वो अगर नहीं होता तो मैं वो मूवी नहीं देखा रहता। मार्गो रॉबी भाई ठीक है होती, बट द प्लॉट इज सो क्रिंजी, लाइन्स आर सो क्रिंजी, एवरीथिंग इज सो क्रिंजी इन दैट मूवी। आई डोंट केयर तुम किसको कास्ट करते, मैं नहीं देखता, बट द फैक्ट दैट दे हैड रायन गॉसलिंग मेड मी स्टे फॉर द होल 2 hours, एंड ऑल्सो दैट विल फेरल वॉज देयर। ये दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर मी, मेरे को पता नहीं था कास्ट में कौन है। सो व्हेन आई सॉ विल फेरल्स नेम इन द कास्ट लिस्ट, तो मैं बोला भाई ये देख सकते हैं बिकॉज ही इज अ गुड कॉमेडियन एक्चुअली। तो या ही हैड एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी, बट आईड से Barbie is cringe. The every place they show in the movie is so cringy. They showed Barbie Land, which is and then Mattel. I don't know why they showed their own company. And then Will Ferrell was a weird guy in that movie, so I don't know why. The only thing that was good in the entire movie was Ryan Gosling and his six packs. एंड आई डोंट गेट व्हाट द प्लॉट ऑफ द मूवी इज। भाई बच्चों के डॉल्स में पेट्रियार्की और मेट्रियार्की क्यों चल रही है, मेरे को अभी तक नहीं समझा है ये। अगर ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मूवी होनी थी तो दे शुडंट हैव यूज्ड अ बार्बी डॉल, दे शुड हैव यूज्ड समथिंग बेटर। कुछ भी चलता भाई, तुम्हें बार्बी डॉल क्यों यूज करनी थी? इट मेड इट सो नॉन सीरियस दैट मेरे को हंसी भी नहीं आ रही थी, बट मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था। इट वॉज जस्ट स्टूपिडिटी, एंड मैंने ये देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई वेस्टेड 2 hours ऑफ माई लाइफ। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, भाई जितने अच्छे ओपेनहाइमर के गाने थे उतने बुरे बार्बी के गाने थे, ठीक है। द ओनली थिंग वाज दैट बार्बी के गानों में रायन गॉसलिंग था एंड वो सिक्स पैक्स दिखा रहा था अपने, एंड मैं वो देख के खुश हो रहा था क्योंकि इट वॉज द ओनली गुड थिंग इन द एंटायर मूवी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर रायन गॉसलिंग अगर इतना चार्मिंग नहीं रहता ना तो मैं वो मूवी नहीं देखा रहता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, आई वुड हैव स्किप्ड ऑफ इन द फर्स्ट 5-10-15 मिनट्स, क्योंकि इट इज जस्ट बैड, इट इज सो बैड। मेरे को नहीं पता कि वो 150 मिलियन कैसे कमा रही है बॉक्स ऑफिस में और ओपेनहाइमर 80 पे कैसे अटका है। इट माइट बी समथिंग टू डू विद द रेटिंग, बट आई सीज टू एग्जिस्ट कि देयर आर पीपल हु थिंक बार्बी इज बेटर देन ओपेनहाइमर। नहीं हो सकता है। So that was all guys, भाई it was I guess a rant and review sort of type बोल सकते हैं। ऑनेस्टली भाई मेरा ओपिनियन है, मेरे को बार्बी अच्छी नहीं लगी इसलिए मैं गाली दे रहा हूँ। देयर आर सम पीपल हु माइट लाइक बार्बी, जिनको मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट ठीक है भाई, तुम्हारा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है। So anyways, thanks for watching the video. If you liked it, please give a like, share it with your friends, subscribe if you want to see more. अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा है comment about it, नहीं अच्छा लगा है comment about it, भाई मेरे को engagement दो please, thank you. And I would come back, I'm gonna be coming back with more. मेरे पास बहुत सारे ideas हैं, I'm going to shoot them all, I'm going to edit them all, and I'll see you in the next one. Bye.